Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 8 maths and our chapter is Introduction to Graph. So, student, we have learned in this chapter 15.1. 15.1 is already completed. What is graph? What is how to draw a graph? And we know that we already completed chapter 5th. In chapter 5th, that is bar graph, histogram, pie chart, circle graph, and so on. Okay, and in this chapter we learn the line graph. What do you mean by line graph? Okay, understand? So in this chapter we learn about line graph and how to read these line graph. Okay, so I hope you all are completed exercise 15.1, and total 7 questions are there, and I hope you all are completed these questions. Okay, and you already know what is the difference between bar graph and double bar graph and histogram, and we already learn about pie chart also. Okay, and a line graph, how to draw a line graph. So we know how to draw a line graph and what is how to read this line graph. Okay, understand? So student, one more thing we have, remember the important things to be remember while preparing a graph are following. आप कौन कौन सी थिंग्स को लर्न करके रखेंगे जब आप प्रिपेयर करेंगे ग्राफ के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव अ क्लियर टाइटल टू द ग्राफ. दिस इज टू अनाउंस व्हाट द ग्राफ स्टैंड फॉर और व्हाट इज रिप्रेजेंट. ओके, जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कहाँ से पता चलेगा? उसके टाइटल से. ओके, मेंशन व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. मेंशन द स्केल यू हैव यूज्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस फॉर अकोमोडेटिंग द डेटा. आप जो स्केल ले रहे हैं आपको वो मेंशन करना है कि आप एक्स एक्सिस पे कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं. ओके, मेंशन द date of the representation of data. Data very often change with time. For example, the total cost of a number of certain object will change if the cost of individual item change on a daily basis. Hence, the value of the variable will be different on different days. Okay, understand? So when we draw a line graph, so the we will learn how to represent data using a line graph. The curve formed by joining successive frequency point using the line segment is called a line graph. Okay, and the line graph is our for so many types. So first of all, we know what is number plane. When we draw histogram and bar graph, we know that there is x axis and y axis also. Okay, so a number plane has two axes. मतलब कोई भी नंबर प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं? That have two axes, that is x axis and y axis. Okay, understand? We have already completed 15.1. Okay, now we know what type of graph is it. Okay, so a number line, a number plane. First of all, you know a number plane has two axes as in the given. अगर हम कोई भी मैप देखते हैं तो हमारे पास में नंबर प्लेन पर दो एक्सिस होते हैं. ओके, अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बीट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग consecutively मीन्स एक के बाद एक हम उनको ज्वाइन करते रहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ. मीन्स जो लाइन के द्वारा बना होता है, डेट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू locate some point on the graph sheet. We will now learn how to locate point conveniently on a graph sheet. So first of all, we know that what अगर ये डॉट लगा हुआ है, सो ये डॉट ए की पोजीशन क्या है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा बच्चों? हमें द डॉट इज द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, द डॉट इज द नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. और हम ये बहुत सारे आंसर दे सकते हैं. कैन एनी वन ऑफ दिस स्टेटमेंट हेल्प फिक्स द पोजिशन? क्या आप इस
इस पॉइंट की फिक्स पोजीशन बता सकते हैं इन क्वेश्चन से? नहीं। वाई? बिकॉज अगर हम उसकी फिक्स पोजीशन देखना चाहें तो सी, यहाँ पर ए बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट में बोलें तो, बॉर्डर पे बोले तो भी बहुत बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। बट हम फिक्स पॉइंट कब बता सकते हैं? जब हमारे पास में एक फिक्स मेज़रमेंट हो। ओके, मीन्स वो जो एज है, जो भी बोर्ड है, बोर्ड की एज से कितने सेंटीमीटर दूर है एंड कितनी सेंटीमीटर की हाइट पर है। ओके, सो व्हेन वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ, so that is called linear graph. Okay, understand? And we need coordinate, the x coordinate and the y coordinate. Okay, so x and y, there are two coordinate, that is x coordinate and y coordinate. See here, this is my x coordinate and this is my y coordinate. Okay, understand? So x and y, there are two coordinates and the x coordinate is always written before the y coordinate. मीन्स जब भी आप लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट पहले आएगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे आएगा. ओके, अंडरस्टैंड? एंड द x कोऑर्डिनेट इज नोन एज अब्सिसा and the y coordinate is known as ordinate. X coordinate is known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. Okay, so remember this thing because I will ask you questions. Okay, what is abscissa and what is ordinate? Okay, understand? So when we learn the location, when we want to find location of any point, then what we can do here, we have two axes, that is x coordinate and y coordinate. See here, that is x and y, there are two coordinates. Okay, so अब अगर हमें पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो हम उसे इजीली बता सकते हैं x and y. Y is called ordinate and x is called abscissa. Okay, and that is also called vertical axis y and horizontal axis as x axis. Okay, understand? और origin, what do you mean by origin? Origin always 0 0 पर होता है. that is हम x और y axis जहाँ पर मीट होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं, that is called origin of the axis. Okay, understand? So here when we want to find, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब याद रखना है कि एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं अब्सिसा एंड वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. while writing the coordinate of a point, the x coordinate is always written before the y coordinate. x coordinate को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? y coordinate के बिफोर. ओके, पहले. अंडरस्टैंड? एंड दोनों ही नंबर्स एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं कॉमा से. सी हियर, अगर हमने यहाँ पर लिखा है 0,0, डेट मीन्स x भी 0 है एंड y भी 0 है और दोनों की दोनों स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होती है? ऑलवेज 0 0 होती है. द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लेइंग ऑन x एक्सिस विल बी 0. अगर हम y कोऑर्डिनेट पूछेंगे कि जो x एक्सिस पर है, मीन्स इस लाइन पर है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. अगर मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पूछती हूँ इस पॉइंट पर, सो अगर ये पॉइंट मेरा 2 है, अगर ये पॉइंट मेरा C, ये 3 पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर मैं y कोऑर्डिनेट पूछती हूँ तो यहाँ पर होगा 3,0. ओके, अंडरस्टैंड? सो y कोऑर्डिनेट इज 0 on x axis and the x coordinate of any point laying on the y axis is always 0. Okay, the x coordinate is known as abscissa and the y coordinate is known as ordinate. Understand, student? So x coordinate is known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. Okay, so what is linear graph? A graph is called linear graph when all the points plotted in the graph are on the same line. अगर हम कुछ देखें तो वो क्या होना चाहिए? सेम लाइन पर है, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर ग्राफ. ओके, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. ओके,
So student, there is x coordinate and y coordinate. Okay, so when we want to find the location of the point, see here, अगर मैं इस point की location बताना चाहती हूँ तो मैं easily बता सकती हूँ, that is x axis पर that is 3 and y is 4. So we can write 3, 4. Okay, understand? So this way we can write any point. Okay, now see any one example, that is example number 3. Plot the point 4, 3 on a graph sheet. Is it the same as the point 3, 4? क्या वो 3, 4 जैसा ही होगा? No, it's not a. See, अगर मैं इसे कार्टेशियन प्लेन पर डालूंगी तो कार्टेशियन प्लेन पर 4, 3. So 4, 3 कहाँ पर होगा बेटा? 4, 3 that the point is here. 4, 3 is here and 3, 4 is here. Okay, so both are different points. Okay, understand? So you have to judge the point is same or not. Okay, और 0, 0 origin वो दोनों की कैसी रहेगी? सेम रहेगी. Okay, locate the x, y axis. They are actually number line. Start at 0. O means 0, 0. हमें O से start करना है. O पर y भी 0 होगा and x भी 0 होगा. Okay, understand? And we have to राइट एक्स कोऑर्डिनेट पे भी हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, वाई कोऑर्डिनेट पे भी हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा है. ओके, अंडरस्टैंड? सो वेयर इज 3, 4 वी कैन इजीली फाइंड एंड 4, 3 वी कैन इजीली फाइंड एंड देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स नॉट सेम. ओके, अंडरस्टैंड? जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है एंड सेकेंड वाला नंबर हमेशा ऑलवेज डिनोटेड सेकेंड कोऑर्डिनेट. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 4. इसे भी आप ध्यान से देखिए. हमें ये पॉइंट्स को यहाँ पर बताना है कि फ्रॉम चूज द लेटर एस द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो. अब 2, 1 को कौन सा लोकेट कर रहा है? सो सी 2, 1 मीन्स एक्स एक्सिस पर हमें 2 लेना है एंड वाई एक्सिस पर 1. सो दिस इज द पॉइंट 2, 1. दैट इज अवर ई पॉइंट. ओके, सो यू कैन राइट इट्स 2, 1 हमारा कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज ई. ओके, अंडरस्टैंड? सेम अगर हमें 0, 5 ढूंढना है तो 0, 5 इज द पॉइंट बी. 0 मीन्स एक्स एक्सिस हमारी 0 है एंड y क्या है हमारा 5. सो x हमारा 0 कब होगा? सी हियर, x हमारा 0 है यहाँ पर और y हमारा 5 है. सो हमारा दैट इज अवर बी पॉइंट. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट दैट इज 2, 0. अब नाउ 2, 0 वेयर इज 2, 0? सो दैट इज अवर जी पॉइंट. ओके, अंडरस्टैंड? पॉइंट ए. अब हमारा पॉइंट ए को हम अगर पूछे कि ए पॉइंट क्या लोकेट कर रहा है, सो ए इज लोकेटेड, सी हियर 4, x 4 है एंड y 5 है. सो वी कैन राइट 4, 5. ओके, अंडरस्टैंड? एंड एफ हमारा क्या डोनेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ वाला जो पॉइंट है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सी. 5 एंड 6 के बीच में है. सो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हुआ इसका 5.5, 0. वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों इसका? 0. ओके, सो दिस वे यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. That is example number 5. Plot the following point and verify if they lie on a line. If they lie on a line, name it. So हमें सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है 0.2, 0.5, 0.6, 0.35. तो सी हियर, ये हमारी y एक्सिस पर दिख रहा है हमें सारे पॉइंट. यस, दिस इज अ लाई ऑन अ line y axis. Okay,
सेम हमें सेकेंड वाला भी देखना है। सेकेंड वाले में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है 1 1 1 1 है एंड वाई इज चेंजिंग 1 1 1 2 1 3 1 4. So it's always in a line. Okay, this lie on a line. The line is AD. हमने बोला वो लाइन को AD. Okay, you may also use other way of naming, means आप कोई भी नेम ले सकते हो, XYZ भी ले सकते हो, PQRS भी ले सकते हो. Okay, and it is parallel to Y axis. सेम हियर, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो x कोऑर्डिनेट के पैरेलल होगा. ओके, एंड अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं 6 2 5 3 3 5 एंड 2 6, सो दिस लाई ऑन अ लाइन वी कैन नेम, हम उसका नाम दे सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और सो ऑन. ओके, सो हम लीनियर ग्राफ किसे बोलते हैं? नोट दैट इन ईच ऑफ द अबव केस ग्राफ ऑब्टेन बाय joining the plotted point is a line. Okay, such graph are called linear graph because we get a line, so this type of graph is called linear graphs. Okay, understand? Now see exercise 15.2 question number first. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसे ही करना है. ओके, एंड आंसर इट. आपको कहाँ पर दिख रहा है वो ग्राफ पर पहले प्लॉट करेंगे, लाइंस पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में आपको देखना है कि क्या वो लीनियर ग्राफ है और नहीं. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन फाइंड द ग्राफ इज लीनियर और नॉट. ओके, now draw the line passing through 2 3 and 3 2. Find the coordinate of the point at which these line meet at x axis and y axis. Okay, so in this question you have to draw the point 3 2 and 2 3. Okay, and when you draw this point, then you can easily answer the question that the graph is linear or not. Okay, सो इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या करना है? आपको पहले इस टाइप का कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, दैट इज एक्स एंड वाई, और वहाँ पर आपको 2 3 एंड 3 2 ड्रॉ करना है. ओके, अगर हम इस वाले कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं, सी हम ये वाले कार्टेशियन प्लेन पर ही बनाकर देख लेते हैं. ओके, वेयर इज 2 3 एंड 3 2. सी 2 3 2 मीन्स एक्स एक्सिस पर 2 है एंड 3 कहाँ पर है बच्चों? वाई पर. सो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर 2 3 एंड 3 2 कहाँ पर होगा? 3 एंड 2 हियर. 2 3 एंड 3 2. ओके, सो यस देट हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज अ लीनियर ग्राफ. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन राइट द. ओके स्टूडेंट, सो दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ द दिस एडजॉइनिंग फिगर. आपको यहाँ पर कौन सा फिगर दिख रहा है? ओके, राइट द कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट्स भी राइट करना है. अगर बी की बात करें तो बी का है 2 3 एंड सी का है 3 0 3. ओके, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन वाई एक्सिस. ओके, सो दिस वे यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको स्टेट वेदर स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है. अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस. वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, सो यस इट्स अ ट्रू. ओके, नाउ सेकेंड वन, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस, सो इट्स फॉल्स. बिकॉज अगर हमारा एक्स 0 है और वाई कोई नंबर है
तो वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर नहीं होगा, वो x एक्सिस पर होगा. ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन is are 0 0. So yes, it's true. Coordinate of the origin is always 0 0. Okay, understand? So this way you can complete 15.2. So today we will learn what is linear graph and how to draw the linear graph, and what is coordinates. Coordinate is x coordinate and y coordinate, and x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. Okay, understand? That is, x coordinate is abscissa and y coordinate is called ordinate. Okay, so remember these things. Understand, student? So complete 15.2 in your notebook, and if you have any doubt, so tell me on WhatsApp. Okay, student? So you have to complete 15.2 इन ग्राफ नोट. आपके पास जो ग्राफ पेपर होंगे, ग्राफ पेपर पर आपको इसको ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में स्टिक कर लेना है. ओके, अंडरस्टैंड? So complete this chapter 15.2 also in your notebook. Okay, have a good day.